which will regulate the gaming space or crypto space in India? Is that what you're saying? Crypto and the blockchain. Look, I have said this before, and the government of India is very clear in its stand on all things internet, including the future of the internet, which is Web3 and blockchain. We are certainly extremely supportive and extremely enabling of any innovation. There is one application and use case of the blockchain, which is crypto, which basically intersects between the internet and innovation ecosystem on one hand, and the macroeconomy and the financial sector, which is a regulated by the RBI on the other hand. And look, this phenomenon is not a unique phenomenon. As more and more functionality and services get enabled online, there are going to be these many increasing examples of twin regulation. So there will be a sectoral regulator who has his or her view on what the regulations for that sector must be, and there will be the internet and tech regulator, which is MeitY. So we have no problems on anything to do with blockchain. We have said this, I have said this, but certainly it is RBI's case, and it's a very legit case, that crypto represents a macroeconomic risk. It represents many other types of risk, and as if that statement was not enough, FTX and many of these cases have only reaffirmed that crypto is not business as usual, and certainly crypto is not just innovation. So I think there is a need for that to be regulated. Countries around the world, central banks around the world are all trying to grapple with this problem. And I have said from almost certainly from February 2022 when I first spoke on the subject, that in India crypto is not illegal. If you buy crypto through the legitimate channels of LRS, RBI approved dispensation on foreign exchange, it is your choice to lose money or make money, and do it in a legal manner. The government, especially our government, does not get into the business of where you should invest in and what you should not invest in. But we certainly have the in a sense, obligation to explain to Indian citizens that you can't exchange rupees for cryptos if you don't go through the LRS route or you violate FEMA. So that is where it is today, and the RBI is very, very clear on it. They have done an excellent job about steering our economy through very, very rocky, difficult, stormy, turbulent global economic time. And I think we should respect their view on how they chart out the crypto course and the crypto runway and the crypto roadmap. And certainly they have said that the CBDC is a route that they want to take. And I have absolutely no problem with that at all. And I think it is certainly the best way to do this without creating any downside risk for our economy. Nobody, no government in the world today wants to build downside risk at a time when there is so much of turbulence and so much of uncertainty in the world. Certainly, just because it sounds like an innovative, fashionable thing to do, I don't think we should be rushing headlong into saying crypto is right and crypto is good. चाहिए दोस्तों, तो जैसे कि आपने वीडियो क्लिप के अंदर देख लिया, जैसे राजीव जी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, वेब3 के बारे में, मेटावर्स के बारे में काफ़ी चर्चाएं की, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इससे पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर इनलीगल नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, एक कहना है राजीव जी, जैसे कि आपके सामने तस्वीर है। साथ ही उसने ये कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा है, बट आप अपनी जिम्मेदारी से कर सकते हो। उसमें आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। मतलब सीधा सीधा डिस्क्लेमर कि आप अपनी जिम्मेदारी से, आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप कर सकते हो। तो ये वाला मामला यहाँ पर राजीव जी ने बताया। साथ साथ यहाँ पर राजीव जी ने ये कहा, ये चीज़ें तो ठीक है कि क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन का अच्छा खासा यूज़ केस है, आने वाले टाइम के लिए इंटरनेट की तरह यूज़फुल होगा। जैसे कि इंटरनेट कैसे यूज़ हुआ था, जैसे स्टार्टिंग में इंटरनेट आया था तब काफ़ी नेगेटिव लोग थे, काफ़ी पॉजिटिव थे, उसके बाद आज तो इंटरनेट के बिना चलता ही नहीं है। तो उसी तरीके से वेब3, मेटावर्स, काफ़ी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। बट क्रिप्टो के लिए आरबीआई का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम के अंदर रिस्क खड़ा कर सकता है, तो उसके लिए रेगुलेशन आना ज़रूरी है। ये कहना है राजीव जी का। राजीव जी ये कह रहे हैं कि आरबीआई कहता है कि क्रिप्टो के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमी के लिए भी ये हानिकारक है, तो इसके लिए रेगुलेशन आना ज़रूरी है। इतनी सी बात है और काफ़ी पॉजिटिव बात है। और यहाँ पर मैं क्रिप्टो के बारे में बात करूँ तो इन दिनों के अंदर 2022-23 के अंदर यहाँ पर इंडिया ने 157 करोड़ रुपए का टीडीएस कलेक्ट किया है। अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि एक रेवेन्यू का रास्ता भी धीरे धीरे बन रहा है। अभी तो यहाँ पर टैक्स पे स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा इंडिया को यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की तरफ से, क्योंकि 30% टैक्स है। तो जिसको भी प्रॉफिट हुआ है वो 30% पे करेंगे और लॉट ऑफ टैक्स यहाँ से गवर्नमेंट जनरेट करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव बात है गवर्नमेंट के लिए कि उसको तो रेवेन्यू मिल रहा है। और देखें तो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ केस भी है आने वाले टाइम के अंदर। देखो, ब्लॉकचेन का यूज़ केस वोटिंग के लिए भी किया जा सकता है, और भी काफ़ी जगह के ऊपर ट्रांजैक्शन के लिए, बॉर्डर पेमेंट के रूप में काफ़ी जगह पे ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट देख रही कि इसका यूज़ केस है, और जो खतरा है वो आने वाले टाइम के अंदर
इकोनॉमी के लिए जो खतरा है, क्योंकि क्रिप्टो का आपको पता है कि किसी के हाथ में वो कंट्रोल नहीं है, बिटकॉइन का किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो कोई गलत तरीके से अगर फंड इधर उधर करता है तो वो इकोनॉमी के लिए हानिकारक है, और उसके ऊपर अगर कानून बन जाए तो लोग क्या है कि कोई ऐसे बंदे गलत तरीके से क्रिप्टो का यूज़ ना करें। तो ये वाला मामला बना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और टैक्स के बारे में ये बताऊँ तो आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फ्रेमवर्क होगा, कानून वगैरह आएगा, तो मेरे हिसाब से टैक्स इसमें से कुछ डिक्रीज़ हो सकता है और टीडीएस भी इसमें से डिक्रीज़ हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी फाइनल नहीं है, मेरे को अंदर से लगता है कि ये चीज़ें हो सकती है। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कमेंट बिल्कुल डालिए, पूरा पूरा भरा भरा रखिएगा, पूरा पूरा खाली रखता है लगता है ओनली डॉट लिख दीजिए, एक डॉट करके कमेंट डाल दीजिए, उतना भी चलेगा। और कुछ गलत लग रहा है तो वो भी लिख दीजिए, मैं देख लूँगा कि क्या यहाँ पर मैंने गलत किया है, ताकि मेरे को भी मालूम पड़े।